میں پاکستان آیا جودھپور ہوتا ہوا کھوکھرا سے کراچی پہنچا تو وہ سیکنڈ پاکستان کی اینیورسری تھی. تو یہاں پر کراچی میں اس وقت ہمارے کیرلا کے بہت سارے لوگ موجود تھے. ان کے یہ چھوٹے چھوٹے پان کے دکانیں, چھوٹے ٹی شاپس, اینڈ دیر واز اے بگ کمیونٹی آف بیڑی ورکرز. بیڑی اسموکنگ سگریٹ کے جو ہے نا تمباکو والے بیڑی ورکرز. یہ بیڑی ورکرز زیادہ تر لیفٹ اورینٹڈ تھے اور ان میں کچھ لوگ کمیونسٹ پارٹی کے ممبرس بھی تھے کراچی میں. تو ان کے ساتھ یہاں آتے ہی ایک کانٹیکٹ میرا ہوا. لیکن میرا یہ تھا کہ مجھے لاہور جانے کا بہت شوق تھا, لاہور دیکھنے کا بھی. تو میں یہاں کراچی میں 1 مہینہ رہنے کے بعد میں لاہور چلا گیا. ابھی لاہور میں پہنچنے کے بعد لاہور میں 1950 سے لے کر میں کام کیا 2-3 بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل کمپنیز میں. مگر وہاں کام کرتے ہوئے لاہور کے جو پروگریسو کمیونٹی جو تھی, پروگریسو جرنلسٹ, پولیٹیکل ورکرز وغیرہ, اس وقت کمیونسٹ پارٹی بین نہیں تھا, ٹریڈ یونین فیڈریشنز بین نہیں تھے. تو نیچرلی وہ جو 2-3 سال جو تھا, وہ 2-3 سال میں میرے کافی ان سے کانٹیکٹ ہوا. میں پیپلز پبلشنگ ہاؤس میں کمیونسٹ پارٹی کے دفتر میں, پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے دفتر میں جاتا رہا. میرے کچھ اور دوست بھی تھے. میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا 2-3 ہمارے کولیگز تھے, ان کے ساتھ ہم لوگ ان سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا. اسی دوران آزاد پاکستان پارٹی بنی. میاں افتخار الدین صاحب نے بنیاد رکھی. اور میاں افتخار الدین صاحب کو سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے زمیندار تھے پنجاب کے, لیکن بہت بڑے کمیونسٹ موومنٹ کے, پروگریسو موومنٹ کے بہت بڑے سپورٹر بھی تھے. فائنینشیل سپورٹر, مورل سپورٹر, ہر لحاظ سے انہوں نے سپورٹ کیا. پاکستان ٹائمز کا پورا جو اسٹیبلشمنٹ تھا, جس میں اردو کے اخبار امروز بھی تھے, پھر کچھ لیل و نہار, کچھ ویکلی, کچھ اور میگزینس بھی تھے, ان سب میں جتنے امپلائیز انہوں نے اکوموڈیٹ کیا, دے ور آل ایدر ایکٹیو ممبرس آف دی کمیونسٹ پارٹی, یا ٹریڈ یونین فیڈریشن کے لوگ تھے, یا لیفٹ موومنٹ سے کسی نہ کسی طرح ایکٹیولی ایسوسیٹڈ تھے. جس میں فیض احمد فیض سے لے کر حیا رحمان تک, اس دوران میں آپ جتنے بھی نام لے لیں, چاہے وہ سبت حسن ہو, مطلب سارے کے سارے جو ہے نا کہ اس میں کسی نہ کسی ایک ان کے میگزین یا نیوز پیپر میں ایسوسیٹ رہے. آزاد پاکستان پارٹی بنی تو اس میں کمیونسٹ پارٹی کے بھی لوگ تھے اس کے اندر, اور لیفٹ کے سارے لوگ تھے اس میں. تو ہم بھی اس میں جوائن کیے. تو وہ پھر وہ ٹل اباؤٹ یہ سمجھ لیں آپ کہ 1958 تک یہ جو 7-8 سال جو تھا, اس میں کافی ایکٹیو رہا. اور جب 1955 میں 1 یونٹ بنا, ویسٹ پاکستان کے تمام چھوٹے صوبوں کو اکٹھے کر کے فورسیبلی ان اے وے ایک آرٹیفیشل یونٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی. وہ بات یہ تھی کہ فیوڈل لاٹس جو ہے نا کہ جو تمام, ویسے بھی فیوڈلس کی واقعی کافی کنٹرول تھا, لیکن وہ اپنے رینکس کو انہوں نے بالکل کنسولیڈیٹ کیا, یونائٹ کیا ویسٹ پاکستان کے لیول پر, تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پروگریسو قسم کے نیشنلسٹ گروپس وغیرہ ہر صوبے میں تھی. جس طرح بلوچستان میں بلوچستان خلات نیشنل پارٹی تھی, سندھ میں سندھ عوامی محاذ تھے, فرونٹیئر میں ریڈ شرٹس موومنٹ, پنجاب میں یہ آزاد پاکستان پارٹی. یہ تمام جو ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا کہ ان کے جو پروگرامز میں فیوڈلزم کے خلاف اور اینٹی مطلب کہ امپیریلزم کے خلاف ایلیمنٹس موجود تھے, ان سم ڈگری ہر ایک میں موجود تھا ان کا سب کے پروگرامز میں. تو اس کو بھی تو کاؤنٹر کرنا تھا. جس طرح فرونٹیئر میں خدای خدمتگار موومنٹ کو کاؤنٹر کرنا تھا, خلات میں خلات نیشنل موومنٹ کو کاؤنٹر کرنا تھا, سندھ میں سندھ کے جو نیشنلسٹ موومنٹ کو کاؤنٹر کرنا تھا. اس کے لیے یہ سارے جو فیوڈل ایلیمنٹس تھے پورے ویسٹ پاکستان کے, یہ یونائٹ ہو گئے. اور
वन यूनिट बना दिया और कैपिटल मूव कर दिया, वन सिंगल कैपिटल इन लाहौर। तकलीफ़ किसको हुई? ये तमाम जो है ना कि छोटे सूबों में कोई मकरान में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वो वेस्ट पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में लाहौर पहुंचना पड़ता था उनको। एनीहाउ दैट वाज समथिंग, इट वाज एन एंटी पीपल मेजर, वन यूनिट। और उसके एक और भी उनका उसमें उसके बीच में एक सिनिस्टर प्लान और था कि ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी थी, मोर देन 50% पॉपुलेशन था, तो वन मैन वन वोट के हिसाब से इन ईस्ट पाकिस्तान वुड ऑलवेज हैव ए मेजॉरिटी इन पाकिस्तान। उसको काउंटर करना था, तो उसके लिए वेस्ट पाकिस्तान का वन यूनिट बना दिया और उनको कह दिया कि भाई अब जो है ना कि यहाँ भी वन यूनिट है, वहाँ भी वन यूनिट, दिस टू यूनिट्स विल बी इक्वल, और इनका दोनों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगा। लेकिन वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन में इक्वल वो कभी नहीं होता, इसलिए कि फ़ौज यहाँ के थे, ब्यूरोक्रेसी यहीं के थे, तो कंट्रोल जो है ना कि इन्हीं का रहता। और सोहरावर्दी जैसे एक डेमोक्रेट को इन्होंने उसमें फंसाया। तो मैं उन दिनों में जब ये 1956 में जब ये वन यूनिट बना, और वन यूनिट बनने के बाद वन यूनिट के ख़िलाफ़ फौरन ही ये स्मॉलर यूनिट्स में एजिटेशन शुरू हुआ। और वो एजिटेशन के साथ साथ एक रियलाइजेशन उनमें आ गया ये छोटे छोटे रीजनल पार्टीज़ में एंड ऑल्सो द प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स कि भाई हमको यूनाइट होना पड़ेगा। ये जो क्लासेस हैं, ये जो एक्सप्लॉइटिंग, ये जो तबक़ात जो है ना कि वो यूनाइट हो चुके हैं। नो, इफ़ यू वांट टू काउंटर देम वी कैन नॉट डू इट सेपरेटली, वी हैव गॉट टू यूनाइट। तो वो उसका नतीजा ये हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान के लेवल पर ये ग्रुप्स जो है ना कि यूनाइट हो गए 1956 में लाहौर में। देयर अगेन मियां इफ्तिखारुद्दीन प्लेड ए वाइटल रोल, पाइवटल रोल उन्होंने प्ले किया। उन्हीं के वहाँ पर ये मीटिंग हुई जो यूनाइट करने की, और ये इसमें अवामी महाज फ्रॉम सिंध, फिर ये था सिंध में वो भी थे हैदर बख्श जतोई का हारी कमेटी थी, बलूचिस्तान से रोर पश्तून वो थे, अचकज़ई के इस अचकज़ई के वालिद के अब्दुल खान अचकज़ई, और खलात नेशनल पार्टी में थे बिजंजो और उनके साथी। फ्रंटियर में गफ़ार खान एंड हिज रेड शर्ट्स मूवमेंट। पंजाब में आज़ाद पाकिस्तान पार्टी और किसान कमेटी। तो ये सारे मिल के नेशनल पार्टी बनी, पाकिस्तान नेशनल पार्टी। सब मर्ज हुए। लाहौर में एक मीटिंग हुई। उन दिनों में मैं एक छोटे लेवल पर मैं बहुत एक्टिवली उसमें मैं करता था, कोई नोट्स लिखता था, फिर स्टेटमेंट बनाने में। सो आई वॉज प्लेइंग ए, बट आई हैव ऑलवेज प्लेड ए बैक बेंचर रोल, दो हैव बीन इन इट। लिखने पढ़ाई में उस वक्त से था। ऑफिस से टाइम मिल जाता तो मैं चले जाता था, शाम को उनके साथ में बैठ जाता था। एंड दिस वेंट ऑन ड्यूरिंग दैट होल मूवमेंट, एंटी वन यूनिट मूवमेंट 1956 से लेकर 1958 तक। इस दौरान में नेचुरली 1951 में मेरी शादी हुई, और मैं वहीं पर लाहौर में हमारे वॉलकट ब्रदर्स में काम करता था, उसके चीफ अकाउंटेंट थे, उनके नीज से मेरी शादी हुई। और वो शादी अभी पिछले मई तक चला, जब मेरी वाइफ मेरे साथ थी। लास्ट मई 28 को उनका इंतकाल हुआ। उस वक्त तक वी लिव टुगेदर, सफ़र टुगेदर। तो ये इस दौरान में ये मूवमेंट, ये जो पॉपुलर मूवमेंट वाज डेफिनेटली यू नो आई मीन गोइंग फ्रॉम वन सक्सेस टू द अदर, यूनिटी की तरफ जा रही थी। वो जो सेपरेट जो टुकड़ों में बटे हुए थे वो यूनाइट हो गए नेशनल पार्टी में। एंड विद इन अनदर ईयर व्हाट हैपेंड वाज कि सोहरावर्दी जब वज़ीर आज़म बना, मैं उन दिनों में कराची आ गया था, बिकॉज आई लॉस्ट माई जॉब देयर, और वहाँ मुझे सही नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं कराची आ गया था। कराची में आई गॉट अ वेरी गुड जॉब इन 1955 इन अ फॉरेन कंपनी। और यहाँ मैं काम कर रहा था, तो उन दिनों में यहाँ हमारे जो प्रोग्रेसिव जो एलिमेंट्स थे जिनके साथ मेरा कांटेक्ट तो था लाहौर से, तो उनके साथ हम मिले, और उनके साथ मिलकर मैं फिर अवामी लीग में ज्वाइन किया। और उस वक्त तक जो है कम्युनिस्ट पार्टी तो बैन हो चुकी थी 1953-54 में। all progressive organizations had been banned. Progressive Writers Association had been banned. Democratic Students Federation had been banned. तो नेचुरली जो है ना कि यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स जो है ना कि अवामी लीग में ज्वाइन किया यहाँ पर कराची में। नॉर्दर्न एरियाज में देवर इन आज़ाद पाकिस्तान पार्टी। तो अब यहाँ पर जो है ना कि अवामी लीग और नेशनल पार्टी
जो लाहौर में नेशनल पार्टी बनी और अवामी लीग, दीज वर द टू मेजर पॉलिटिकल फोर्सेस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्सेस, ये दो थी वेस्ट पाकिस्तान में. तो अवामी लीग वॉज नॉट ए वेरी पॉपुलर थिंग इन वेस्ट पाकिस्तान, वो थोड़े से उसमें कैडर थे कुछ. और जब ये लेफ्ट एलिमेंट्स उसमें ज्वाइन किया उस वक्त मैं भी उसमें था और महमूद अल हक उस्मानी के घर में हमारा ऑफिस था एंड आई वाज द इन ए वे ऑफिस सेक्रेटरी सॉर्ट ऑफ ए थिंग इन अवामी लीग. और उसमें मैंने काफ़ी अवामी लीग में महमूद अल हक उस्मानी के साथ आई वाज ऑलमोस्ट हिज पॉलिटिकल सेक्रेटरी फॉर ऑलमोस्ट 2-3 years. और लेकिन हुआ ये है कि 1956 में सोहरावर्दी, देयर वर अ लॉट ऑफ आई मीन पैलेस इंट्रिग्स व्हिच kept on changing governments one after the other without any popular backing. गवर्नमेंट चेंज होते रहे, कभी इस्कंदर मिर्ज़ा, कभी चौधरी मोहम्मद अली, कभी इब्राहिम चुंदरीगर, पंजाब में दौलताना ममदोद, all sorts of conspiratorial changes of governments continued. लेकिन ये चलता रहा. एंड व्हेन फाइनली 1956 में सोहरावर्दी प्राइम मिनिस्टर बना एंड वी सपोर्टेड हिम, बट बिकॉज वी थॉट कि अवामी लीग का एक 14 पॉइंट प्रोग्राम था विच वॉज वेरी प्रोग्रेसिव. इट वॉज एंटी इम्पीरियलिस्ट, इट वॉज एंटी फ्यूडल, इट वॉज प्रो लेबर, सो दैट काइंड ऑफ ए 14 पॉइंट प्रोग्राम थी. लेकिन हुआ ये है कि सोहरावर्दी के पास सिर्फ 14 मेंबर थे असेंबली में. सारा मेजॉरिटी जो थी वो रिपब्लिकन पार्टी बाय द वे 1955 में थ्रू ए कॉन्स्पिरेसी मुस्लिम लीग का एक रातों रात एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी. ब्यूरोक्रेसी और आर्मी के जो है वो सारे मिलकर रिपब्लिकन पार्टी बनी. वो रिपब्लिकन पार्टी का प्रोग्राम में एक पॉजिटिव पॉइंट यह था, इट हैड अ सेक्युलर सॉर्ट ऑफ ए टिंच, अनलाइक मुस्लिम लीग. तो वो और अवामी लीग मिलकर फिर हुकूमत बनाई 1956 में, जिसमें सोहरावर्दी प्राइम मिनिस्टर हुआ. फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग लॉस्ट पावर इन वेस्ट पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन द सेंटर में. तो खैर ईस्ट पाकिस्तान में 1954 के इलेक्शन में ही मुस्लिम लीग बे ऑफ बंगाल में दफन हो चुके थे. वहाँ यहाँ दफन नहीं था, यहाँ दफन हुआ 56 में जब वन यूनिट बना. वन यूनिट के बाद जब यहाँ पर अवामी लीग और रिपब्लिकन पार्टी जब हुआ तो मुस्लिम लीग वेंट इनटू द ऑपोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा, ये जो 1956 में वो गवर्नमेंट चली अबाउट 1-2 महीना तो प्रोग्रेसिव किस्म की बातें करते रहे सोहरावर्दी साहब, मगर क्या था, ही वाज हिज पार्टी हैड अ माइनॉरिटी, हिज पार्टी वाज इन द माइनॉरिटी इन द वेस्ट पाकिस्तान असेंबली एंड इन द सेंटर. वेस्ट पाकिस्तान असेंबली में तो वो था ही नहीं, बट नेशनल असेंबली में उनके कोई 14 मेंबर्स थे. He was always under the pressure from the feudal dominated Republican Party and pro-Western Republican Party. नतीजा ये हुआ कि अवामी लीग का प्रोग्राम कोई आगे नहीं बढ़ा सका. Then came a turning point, that was when this tripartite attack on Suez Canal, जब ब्रिटिश, फ्रेंच, इजराइल का जो अटैक हुआ फोर्ट सईद पर, सुएज कनाल पर कब्जा करने के लिए, तो उस वक्त ही हैड टू डिसाइड